طالبان کا وادی پنشیر کے بیشتر علاقے پر قبضے کا دعویٰ، شمالی اتحاد کے اہم رہنما احمد مسعود منظر سے غائب۔ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے مشاورت تیز، ملا عبدالغنی برادر نئی انتظامیہ کے سربراہ ہوں گے۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کا معاملات طے کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کل دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب، بحرین اور کویت کا بھی دورہ کریں گے۔ افغانستان میں زندگی معمول کی جانب گامزن، کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ منی ایکسچینج مارکیٹ 10 روز کے بعد دوبارہ کھل گئی۔ کابل ایئرپورٹ کی بحالی کے لیے قطر کا تیسرا طیارہ ساز و سامان اور عملے کو لے کر افغانستان پہنچ گیا۔ ہوائی اڈہ اگلے چند روز میں مسافر اور کارگو پروازوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاک فوج کشمیر کاز کے ساتھ پرعزم ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے تاریخی اور بے لوث جدوجہد پر سید علی گیلانی کو زبردست خراج عقیدت۔ مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی کی جبری تدفین کے تیسرے روز بھی کڑے پہرے۔ کشمیریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے جگہ جگہ بھارتی فوجی تعینات، موبائل اور انٹرنیٹ بند۔ لوگوں کو اشیاء ضروریہ خریدنے کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں۔ خوشبو کسی ایک وعدے کی ہے، اس کے ورثے کا ہم استعارہ بنے۔ ہر طرف پھیلتی بے امارات میں ہو جو منزل نشان، وہ ستارہ بنے۔ عرض کی ہو وہ سرحد کے ایمان کی، اس پہ پڑنے نہ دیں دشمنوں کے قدم۔ جو بھی سرحد ہو اس کے محافظ ہیں ہم، مل کے بانٹیں گے سب وہ خوشی ہو کے غم، خوشی ہو کے غم، خوشی ہو کے غم۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر، دشمن کے عزائم خاک میں ملانے والے شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو قوم کا سلام۔ ہم تیرے ہم قدم، ہم تیرے ہم زباں، اے زمین وطن مادر مہرباں۔ کراچی میں بادلوں کا راج، کبھی گرجے کبھی برسے، سڑکیں تالاب، سفر عذاب بن گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، انتظامیہ اور بجلی غائب۔ کراچی کے شہریوں کا دوسرا روز بھی شدید مشکلات میں گزرا۔ کرنٹ لگنے کے واقعات میں بچی سمیت 5 افراد جاں بحق۔ عوامی حکومت کا ایک اور فلاحی قدم، صحت انصاف کارڈ سے متعلق شہریوں کے مسائل پاکستان سٹیزن پورٹل سے منسلک کر دیے گئے۔ پورٹل پر خصوصی کیٹیگری کا اجرا، اسپتالوں میں علاج سے انکار، سہولتوں کے فقدان اور عملے کے رویے پر براہ راست شکایات درج کرائی جا سکیں گی۔ ملک میں کرونا کے وار جاری، وبا سے مزید 79 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 3980 نئے کیسز رپورٹ، شرح 6.2% ریکارڈ۔ دوسری ڈوز لگوانے والوں کے لیے اتوار کا دن مخصوص۔ امریکہ آئندہ 10 روز میں پاکستان کو فائزر ویکسین کی 66 لاکھ اضافی خوراکیں فراہم کرے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام سے براہ راست رابطہ، کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنے، موقع پر احکامات جاری، عوام کو تمام سہولتیں دہلیز پر پہنچائیں گے، سردار عثمان بستار۔ شوگر ملز کیس، بینکنگ کورٹ لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی ٹیم کے سربراہ کو طلب کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان قومی اداروں پر تنقید کر کے اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں۔ JUIFA نے ہمیشہ سیاست کے لیے مدرسے کے بچوں کو استعمال کیا، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل۔ اٹلی میں ورلڈ بیچ ریسلنگ، پاکستانی پہلوان انعام بٹ نے گولڈ میڈل جیت لیا، فائنل میں یوکرین کے پہلوان کو شکست دی۔ کیا بات ہے انعام، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، US اوپن ٹینس میں بڑا اپسٹ، تیسرے راؤنڈ میں یونان کے اسٹیفانوس سیسیپاس نے اسپین کے کارلوس کو شکست دے دی۔ عالمی نمبر 2 روس کے ڈینیل میڈویڈوف کو بھی پیش قدمی جاری۔ خواتین مقابلوں میں دفاعی چیمپئن ناومی اوساکا کو بھی اپسٹ شکست، کینیڈا کی لیلا فرنانڈیز چوتھے مرحلے میں پہنچ گئیں۔ ایونٹ کے میچز PTV سپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں صبا ریاض، اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ آپ بھی کریں کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے ذریعے اپنا اور دوسروں کا تحفظ۔ PSO NCOC کے تعاون سے کر رہا ہے اپنے تمام ہم وطنوں کی مفت ویکسینیشن۔ آئیں آپ بھی زندگی کو معمول پر لانے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں، SOPs پر عمل کریں اور جلد از جلد خود کو اور اپنے خاندان کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں۔ ہم ہیں محافظ صحت مند پاکستان کے۔ یہ پیغام PSO کی جانب سے مفاد عامہ میں نشر کیا گیا۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال۔ افغان طالبان نے وادی پنشیر کے زیادہ تر علاقے پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق بہت محدود پیمانے پر مزاحمت ہو رہی ہے، جس سے جلد نمٹ لیا جائے گا۔ شمالی اتحاد کے اہم رہنما احمد مسعود منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ طالبان کی جانب سے حکومت کی تشکیل کے لیے وسیع تر مشاورت کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ملا عبدالغنی برادر نئی حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے متعلق مختلف معاملات طے کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ کابل میں اپنی سفارتی موجودگی چاہتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نئی حکومت سیکیورٹی اور انسانی حقوق کے حوالے سے وعدوں پر عمل درآمد پر نظر رکھی جا سکے۔ افغان دارالحکومت میں زندگی معمول کی جانب گامزن ہے۔ کابل میں منی ایکسچینج مارکیٹ آج 10 روز کے بعد کھل گئی، تاہم دوسری کرنسیوں کی شرح تبادلہ نسبتاً زیادہ ہے۔ قطر اور ترکی کے تعاون سے کابل ایئرپورٹ بین الاقوامی پروازوں کے لیے تیار ہے۔ رن ویز کی مرمت مکمل ہو چکی ہے۔ طالبان نے سول کام اور تعمیر و مرمت، جبکہ قطر اور ترکی نے تکنیکی خدمات فراہم کی۔ توقع ہے کہ بین الاقوامی پروازیں جلد شروع ہو جائیں گی۔ قطر کا تیسرا طیارہ آج کابل پہنچا، جس میں ایئرپورٹ کی بحالی کے لیے ساز و سامان اور عملہ موجود تھا۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कल से सऊदी अरब समेत खत्ते के बास ममालिक का दौरा करेंगे। अपने दौरे में वो इन ममालिक की क़यादत के साथ मुलाकातों में काबुल से इत्तेहादी फ़ौजियों और इनके मुआवनीन के इनखला के दौरान ताउन करने पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी के बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा अपने दौरे में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत के हुकाम और इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों से भी मुलाकात करेंगे। अमरीका और इसके इत्तेहादी ममालिक को अफगानिस्तान में 20 साल जंग के बाद तारीख का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन करना पड़ा, जिसमें इंतहाई महदूद वक्त के अंदर 1,20,000 अफराद, जिनमें गैर मुल्की फ़ौजी, उनके मकामी मुखबर और मुआवन शामिल थे, उन्हें अफगानिस्तान से निकाला गया था। नाज़रीन, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इकदाम पर अमल दरामद जारी है। अमरीका ने पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मज़ीद 66 लाख खुराकें फराहम करने का ऐलान किया है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। मुल्क भर में कोरोना वबा से मजीद 79 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 3,980 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजबूरी तादाद 26,114 हो गई है। NCOC ने वैक्सीनेशन की नई हदायत जारी करते हुए कहा है कि शहरी हफ्ते के 7 दिन किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। NCOC की जानिब से इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर किया गया है। 18 साल से कम उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए बे फॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 से 17 साल तक की उम्र की कम कुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। अमेरिका आइंदा 10 रोज के दौरान पाकिस्तान को कोवैक्स सहूलत के तहत फाइजर वैक्सीन की 66 लाख इजाफी खुराकें फराहम करेगा, जिससे अमेरिकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को अतिया करदा वैक्सीन की खुराकों की तादाद 1,58,00,000 हो जाएगी। बीमारी के फैलाव को कम करने के लिए मुंतखब 24 इजला में 4 से 12 सितंबर तक खुसूसी इकदामात लिए गए हैं। इन इकदामात के तहत तालीमी शोबे की बंदिश, बीमारी के ज्यादा फैलाव वाले इजला में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त पर पाबंदी और तमाम तकरीबात पर पाबंदी शामिल है। कोरोना वबा की चौथी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद जरूरी है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने मुलाकात की। मुलाकात में गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तारीखी और बेलौस जद्दोजहद पर सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को कश्मीर कौस और कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी और कश्मीर की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतजामी ने लोगों को बाबाए हुर्रियत और तहरीक आज़ादी के सरखेल सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए श्रीनगर की तरफ मार्च से रोकने के लिए आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी कड़ा कर्फ्यू नाफिज किए रखा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मार्च की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी थी। मकबूजा इलाके के चप्पे चप्पे पर तैनात हज़ारों भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने लाखों अफराद को घरों तक महदूद कर रखा है। सैयद अली गिलानी के घर की तरफ जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी की गई हैं और खारदार तारें बिछाई गई हैं। लोगों को सूरत हाल के बारे में मालूमात के तबादले से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। हुर्रियत तर्जुमान ने बुजुर्ग हुर्रियत कायद सैयद अली गिलानी की मुल्क भर में कायबाना नमाज जनाजा अदा करके मकबूजा इलाके के लोगों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर अपने मजबूत मौक़िफ़ पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीरवाइज़ उमर फारूक ने, जो अगस्त 2019 से घर में नज़रबंद हैं, सैयद अली गिलानी के बेटों से टेलीफोन पर बात की और उनके वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने बुजुर्ग रहनुमा की नमाज जनाजा में अहले खाना और लोगों की शिरकत की इजाज़त न देने पर काबिज़ हुकाम की मज़म्मत की।
श्रीनगर में ताज़ियती इजलास से खिताब करते हुए सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा कि सैयद अली गिलानी बजाते खुद एक तहरीक थे जिन्होंने जिंदगी भर तहरीक आज़ादी के लिए अजीम खिदमात और कुर्बानियाँ दी। हुर्रियत रहनुमाओं इंजीनियर हिलाल अहमद वार, देवेंद्र सिंह बहल, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, पीपल्स लीग और यंग मेंस लीग ने अपने पैगामात में काबिज हुकाम की तरफ से मुसलसल कर्फ्यू के नफाज की शदीद मजम्मत की है। बरतानिया में मुकीम सैकड़ों कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी की अलामत सैयद अली गिलानी की मैयत को अपने कब्जे में लेने और उनके अहल खाना और लोगों को उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त ना देने पर काबिज भारतीय इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने इसे बदतरीन जुल्म और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में मुकर्ररीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी कार्रवाई और जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराए। बर्मिंघम शहर में भारतीय कौंसल खाने के बाहर मुजाहरा किया गया, जहां मुजाहरीन ने भारतीय हुकाम और उनकी कार्रवाइयों की मजम्मत की है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी के रिश्ते एहसास से बनते हैं। इन्हीं रिश्तों की आबियारी के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान का कामयाब तरीन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर आपके प्यारों की जिंदगी में उम्मीद और सेहत के लिए पुरअज़्म एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम लिवर, किडनी, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यकीनी बनाती है। मरीज और डोनर्स की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़। इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। आप भी करें कोविड-19 की वैक्सीनेशन के जरिए अपना और दूसरों का तहफ्फुज। PSO NCOC के ताउन से कर रहा है अपने तमाम हमवतनों की मुफ्त वैक्सीनेशन। आएं, आप भी जिंदगी को मामूल पर लाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। SOPs पर अमल करें और जल्द अज जल्द खुद को और अपने खानदान को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। हम हैं मुहाफिज सेहतमंद पाकिस्तान के। ये पैगाम PSO की जानिब से मफाद आमा में नशर किया गया। भारत के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला नोएडा में मुतनाज़ा ज़रई कावनीन के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खवातीन समेत 125 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल मगरबी रियासत पंजाब के इलाके मोगा में भी सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल मुजफ्फरनगर में किसानों की बड़ी पंचायत हो रही है, जिसमें लाखों किसान शिरकत करेंगे और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। भारत की मुख्तलिफ रियासतों से किसान मुजफ्फरनगर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास स्पीकर चौधरी अनवारुल हक की सदारत में मुजफ्फराबाद में हुआ। इजलास में बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी को शानदार जिद्दोजहद पर भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने अपनी सारी जिंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर और कश्मीरियों के हुकूक के लिए वक्फ कर दी थी और आखिरी दम तक अपने नजरिए पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि कैदोबंद की सोबतों और भारतीय मजालिम के बावजूद सैयद अली गिलानी साबित कदम रहे और उनके जज्बा हुर्रियत में कोई कमी न आई। दीगर अरकान ने सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अजीम रहनुमा के इंतकाल पर कश्मीरी कौम गमज़दा है। रियासती अवाम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा की वफात से पैदा होने वाले खला पुर नहीं हो सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ईदी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। तफसील ज़मीर अब्बास से। गुज़िश्ता रोज़ की शदीद बारिशों के बायस कराची की अहम शाहराएं और नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के 3 बड़े बरसाती नालों की सफाई के बायस शहर की अहम शाहराओं से पानी को निकाला जा चुका है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों और गली मोहल्लों में अब भी बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस शहरों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया है। बुरा हाल है, कोई सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है।
सेम गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ पर। जो हुकूमत का काम है वो रोड का सफाई है, गटर की सफाई ये तो करे ना। भाई एक ही बारिश होती है यहाँ पे पूरा रोड जाम हो जाते हैं, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। महकमा मौसमियात की जानिब से हालिया बारिशों के दौरान कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया था। ताहम सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया ने बारिश के पानी की निकासी के लिए बर वक्त इंतजाम नहीं किए, जिसके बायस गुज़िश्ता रात शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने शदीद बारिशों से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सड़कों पर पानी की मौजूदगी को शहरी इंतजामिया की नाकामी करार दिया। कराची के मुख्तलिफ रास्ते, मुख्तलिफ रोडें, स्कूल गटर के पानी में डूबे हुए हैं। बड़ा नुकसान इसलिए नहीं हुआ, गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला वफाक की जानिब से 90% कंप्लीट हो चुके हैं। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक 1900 फीडर में से 190 फीडर्स में बिजली मुअत्तल है, जिसको बहाल करने के लिए काम जारी है। गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, मेमनगोट और कराची के दीगर इलाकों में कहीं तेज तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश जारी है, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक रात देर तक जारी रहेगी। समीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, ख़ास तौर पर इंसानी सिचुएशन पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन व इस्तेहकाम के लिए अफ़गान मसले के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 4 दिहाइयों से जारी इस तनाज़े के खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाना होगा ताकि अफ़गान अवाम अमन व सलामती और खुशहाली हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान के साथ राबतों को बढ़ाना होगा ताकि माशी इस्तेहकाम और इंसानी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गान अवाम के लिए इमदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के अहम किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इनखला और दूसरे कामों में फ़राहम की गई मुआवनत के बारे में भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस को पाकिस्तान के ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में जारी मिशन मुकम्मल ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान कौमी इदारों पर तनकीद करते हैं और इससे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान विकेट के दोनों तरफ खेलने के बजाय एक तरफ खेलें। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वतन अजीज़ के लिए जाने कुर्बान करने वालों के खिलाफ कोई मुगल्लज़ात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी कौम अपनी एयरफोर्स और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है और सितंबर के दिनों में ये हम सबका फर्ज है सियासत से बालातर हो के, कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, कारोबार हो, कि हम अपने उन शोहदा के घरों पर हाजिरी दें, उनके वालिदैन को बताएं कि आपके बेटों का खून जो है वो हमारे ऊपर कर्ज है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कश्मीरियों की आज़ादी का इस्तिआरा थे। उनकी तदफीन पर भारत की जानिब से गैर इंसानी सलूक काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर के सच्चे पाकिस्तानी थे। उनका कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और वतन अजीज़ को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिशें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। और नाज़रीन आपको आगाह करें कि शहरियों के मसाइल के हल और निज़ाम में मज़ीद बेहतरी के लिए सेहत इंसाफ कार्ड को पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में पोर्टल पर सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से खुसूसी कैटेगरी अलॉट कर दी गई है।
वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट के मुताबिक अस्पतालों में इलाज से इनकार, सहूलतों के फुकदान और अमले के रवैये से मुतालिक बराह रास्त शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इलाज पर आने वाले अखराजात की अदम मालूमात, इलाज में ताख़ीर और गलत इलाज पर भी शहरी शिकायत कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि सेहत इंसाफ कार्ड के पैनल में शामिल अस्पतालों के मसाइल के बारे में शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। उन शिकायत के फौरी अजाले के लिए स्टेट लाइफ के आला अफसरों को खुसूसी डैशबोर्ड भी अलॉट किया गया है। चेयरमैन स्टेट लाइफ शहरियों की शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाएंगे। ये जो खुशबू किसी एक वादे की है, इसके विरसे का हम इस्तेआरा बने। हर तरफ फैलती बेअमारात में वो जो मंजिल निशान, वो सितारा बने। अर्ज की हो वो सरहद के ईमान की, उस पे पड़ने न दें दुश्मनों के कदम। जो भी सरहद हो उसके मुहाफिज है हम, मिल के बांटेंगे सब वो खुशी हो के गम। खुशी हो के गम, खुशी हो के गम। एक रस्ते पे हो सब ये पीरो जमा, अज़्म हो बेलचक हौसले हो जमा। हम तेरे हम कदम, हम तेरे हम जुबा, ऐ ज़मीने वतन मादरे मेहरबा। हम तेरे हम कदम, हम तेरे हम जुबा, ऐ ज़मीने वतन मादरे मेहरबा। हम तेरे हम कदम। नाज़रीन, अब बात करते हैं जुर्रत और बहादुरी के एक ऐसे पेकर की जिसने जंगे सितंबर में दुश्मन को उसके घर में हजीमत से दो चार किया। वो गाजी वाहगा सेक्टर में BRB के उस पार भारतीय मेजर जनरल निरंजन प्रसाद से फौजी जीप छीनने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे। मुलाकात करवा रहे हैं मुल्तान से शिराज दुरानी। की जंग में पाक फौज के जवानों ने दुश्मन की तमाम चालबाजियों, मक्कारियों और बुज़दिलाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाते हुए धरती माँ का कामयाब दिफा किया। कौम के बहादुर बेटों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए वो अजीम दास्तानें रकम की जिनकी मिसालें रहती दुनिया तक पेश की जाती रहेंगी। मुल्तान के नवाही कस्बे बस्ती मलूक के रिहायशी रिसालदार फरमान भी उन जवानों में से एक हैं जिन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम करके अपना नाम अर्ज़ पाक के बहादुर बेटों में शामिल किया। गाजी रिसालदार फरमान ने 8 सितंबर 1965 को 18 बलोच रेजिमेंट के स्क्वाड का मुतहर्रिक हिस्सा होते हुए BRB के उस पार दुश्मन फौज की 15वीं डिवीजन के GOC मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की न सिर्फ पेशकदमी को कामयाबी से रोका बल्कि उसकी जीप भी छीन ली। ये जीप भारतीय मज़मूम मकासद की नाकामी की मुंह बोलती तस्वीर का मंजर पेश कर रही है। अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाए, लड़ने के लिए बम बांध के फेंक दो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। कौम सलाम पेश करती है गाजी रिसालदार फरमान की जुर्रत को, शहदा के जज्बे को, उनके खानदानों के सब्र हिम्मत को। सलाम पेश करती है शहीदों और गाजियों से जुड़े हर रिश्ते को। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, लिबास ये दिलरुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ, हाँ तू मेरी हर दुआ। नाज़रीन, 1965 की पाकिस्तान भारत जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ साथ मुल्क के दानिश्वरों, शायरों और गुलकारों ने भी अपने अल्फाज और आवाज़ के जरिए कौम के हौसलों को बुलंद किया। मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट देखिएगा। भारत ने तबले जंग बजाया तो कलमकार, सहाफ़ी और दानिश्वर हजरात भी इस किश्वर हसीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतर आए। एक तरफ पाक फौज महाज जंग में दुश्मन को पसपा कर रही थी तो दूसरी तरफ अहले इल्म तलवार से भी ज़्यादा तेज़ अपने कलम के ज़रिए बातिल को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का पैगाम दे रहे थे। इन 17 दिनों के दौरान हमारे अखबारात की तहरीरों ने कौम में मिली जज्बे की नई रूह फूंक दी कि जहाँ हमने अपनी सरहदों पर दुश्मन के दांत खट्टे किए, उसी तरह मीडिया के महाज पे भी मैं कहूँगा जो मीडिया वॉर थी
उसको भी बड़े अच्छे अंदाज में उसको काउंटर किया और एक जो मीडिया का अटैक था उसको भी रिपल्स किया। अफवाज पाकिस्तान के साथ रेडियो पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इसमें हमारे फनकारों और राइटर्स, शायरों, अदीबों और जितने भी हमारे रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता अफराद थे, सब ने अपनी अपनी जगह पर किरदार अदा किया है। मुल्क के तमाम नामवर शायरों ने मैदान जंग को शेरी पैकर में ढाला। सूफी तबस्सुम, मुशीर काज़मी, अहमद नदीम कासमी, जमीलुद्दीन आली, मुजफ्फर वारसी, तनवीर नकवी, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर शुरा कराम ने दर्जनों गीत लिखे। मैडम नूर जहां, मेहंदी हसन, उस्ताद अमानत अली खान, मसूद राना, अनायत हुसैन भट्टी और दूसरे गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और वतन से अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। 1965 की पाक भारत जंग में हमारे शायरों, अदीबों, खुसूसन फनकारों ने कौमी जोशो जज्बे की ऐसी मिसाल कायम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। 1965 की जंग के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया। इंतहाई हंगामी सूरत हाल में रेडियो पाकिस्तान ने मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत का फर्ज खूब निभाया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के किरदार के बारे में बता रहे हैं मुदस्सिर खान अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। जंग के दिनों में रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तारीख शानदार कारनामों से भरी पड़ी है। नामवर शायर, अदीब, दानिश्वर और सदाकार इस इदारे से मुंसलिक थे। 1965 की जंग के दौर में टेलीविजन महज चंद घरों की जीनत था और महाज पर मौजूद फौजी हो या उन पर जान निछावर करने वाले अवाम सब रेडियो की नशरियात से इस्तेफादा करते थे। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो जज्बा था वो उभारा जाता था और जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसका भरपूर जवाब यहाँ रेडियो पाकिस्तान पेशावर से भी दिया जाता रहा है। इस सिलसिले में हमारा एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम था हुजरा। ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा अब्दुल्ला जान मग़मूम का। उनका अंदाज़ गुफ्तगू और उनके तबसरे इस तरह के होते थे कि सुनने वाला यानी कि जो दुश्मन है उसके दांत खट्टे हो जाते थे। जज्बों को जवा और लहू को गरमाए रखने वाले मिली नगमे हर वक्त रेडियो पाकिस्तान पेशावर से गूंजते रहते। गुलकारों, शायरों और मौसीकारों ने जज्बा हुब्बुल वतनी में ऐसे नगमे और तराने तख्लीक किए जो आज भी जोश और वलवले में इजाफा कर देते हैं। पाक भारत जंग के हवाले से रेडियो पाकिस्तान के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अपने वतन पर फख्र करने के लिए हमारे पास कितना कुछ है, जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान के लीडिंग और कामयाब तरीन लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट्स कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किए जा चुके हैं। एक ही छत तले पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम मरीज और डोनर की मुकम्मल केयर और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए किसी गैर मुल्क में क्यों जाए? इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम। आप भी करें कोविड-19 की वैक्सीनेशन के जरिए अपना और दूसरों का तहफ्फुज। PSO NCOC के ताउन से कर रहा है अपने तमाम हमवतनों की मुफ्त वैक्सीनेशन। आए आप भी जिंदगी को मामूल पर लाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। SOPs पर अमल करें और जल्द अज जल्द खुद को और अपने खानदान को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। हम हैं मुहाफिज सेहतमंद पाकिस्तान के। ये पैगाम PSO की जानिब से मफाद आमा में नशर किया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अवामी मसाइल के हल के लिए 90 शाहराए कायद-ए-आज़म पर खुली कचहरी लगाई।
उन्होंने शहरियों से उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आवाम के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खराब कारकर्दगी पर अफसरों से बाज़ पुरस होगी। वज़ीर आला ने सेशन कोर्ट हाफिजाबाद के बाहर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली है और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने 3 बरस में ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए हैं। लाहौर से हुमा सदफ की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की आलमी वबा के बावजूद मुल्क में आला तालीम का सिलसिला बहाल रखने के लिए PTI की हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली अपनाई। बिलखसूस ख़वातीन को आला तालीम के मौक़े फराहम करने के हवाले से नई दर्सगाहों के क़याम और पुरानी की अपग्रेडेशन समेत कई अहम इक़दाम किए गए। जहाँ पर ओपन मेरिट्स हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फिर उसके साथ जो स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के इदारे हैं वहाँ पर भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ पहले माजी के मुकाबले में अगर हम 10 साल भी पीछे या 20 साल जाएँ तो ख़वातीन के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, शायद कहीं कहीं लड़कों से ज़्यादा मौजूद है। खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तानी तालिबात को उनके हक में किए जाने वाले फैसलों का इदराक उन्हें रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दे रहा है। इमरान खान की हुकूमत ख़वातीन पर एतमाद कर रही है, ख़वातीन को अहम पोस्टों पर तैनात कर रही है और उनके लिए नई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बना रही हैं। जैसे लड़कियों ने यूथ ने ज़्यादा PTI को वोट किया है, उस तरह PTI की हुकूमत में ज़्यादा लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई हैं। जैसे हमारा अपना कॉलेज जो कि वुमेन के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, इसको यूनिवर्सिटी का रुतबा भी मिल चुका है। कौमों की तरक्की में भी ख़वातीन का किरदार साबित शुदा है, इसीलिए बजट में भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में ख़वातीन और नज़रअंदाज किए जाने वाले दूसरे तबकात को आला तालीम की सहूलतें फराहम करने के हवाले से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के पार्लिमानी लीडर बलोचिस्तान असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद से कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बलोचिस्तान में PTI तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली मीर उमर खान जमाली के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन, मुल्क में तामीराती शोबे और इससे मुंसलिक सनतों की तरक्की और शहरियों को सस्ते और म्यारी घरों की फराहमी के लिए इस्लामाबाद में 3 रोज़ा नुमाइश जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में जारी 3 रोज़ा एक्सपो में बिल्डर्स, डेवलपर्स और तामीराती शोबे की बड़ी कंपनियों के साथ बैंकों, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इस शोबे से वाबस्ता दीगर मसनूआत के स्टॉल लगाए गए हैं। Pakistan is very friendly and brother country to Azerbaijan. It is my first time that I am visiting such a nice place, such a organized event that shows and explains what potential of Pakistan has in the infrastructure, which is the important part of economy. Mainly real estate industry के साथ जो allied sectors हैं उनको यहाँ पे हमने promote किया है, लेकिन ये वो industry है जो कभी भी as a industry recognize नहीं की गई। इस हुकूमत ने आके वो चीज़ change की है। मुल्क में तामीराती सरगर्मियों के फ़रोग से रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। इमरान खान साहब की ये कि इसको एक इंडस्ट्री बना दिया है, हम उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं। इसमें जॉब क्रिएशन बहुत है और इसमें वेल्थ क्रिएशन भी बहुत है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बूम करती है, तो डेफिनेटली उसके जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सब में बूम आता है। अभी मेन चीज़ आ रही है कि हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ। अगर 4 कनाल के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसके ऊपर अगर 10 स्टोरीज भी हैं या 5 स्टोरीज भी हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसके अंदर कम से कम भी 200+ फैमिलीज रह सकती हैं। तामीराती शोबे की तरक्की के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फ्राहमी समेत दीगर कई मुराद दी गई हैं। ये प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम जो है ये लो कास्ट पे लोगों को जो है वो होम फाइनेंस किया जाता है। हम उन लोगों को घर फाइनेंस करते हैं जिनके पास अभी अपने रिहाइश के लिए कोई यूनिट नहीं है। इस शोबे में जैसे ही बेनिफिट्स का ऐलान हुआ है तो एक अच्छी पब्लिक के रेशो ने मूव किया है बैंक्स की तरफ। तामीराती शोबे की तरक्की से जहां माशी सरगर्मियों को फ़रोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ हर शहरी को छत की फराहमी से फलाही रियासत का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और तामीराती इंडस्ट्री अपने साथ 40 मुख्तलिफ सनतों के मुंसलिक होने की वजह से खुसूसी अहमियत की हामिल है। इस शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी बरात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। तफसील हसन तारिक से जानते हैं। तामीरात के शोबे के फ़रोग के लिए हुकूमती पैकेज के तहत मुतादिद टैक्स मराहत मुतारिफ कराई गई हैं। इन मराहत में कम कीमत हाउसिंग के मनसूबाजात के लिए फिक्स टैक्स पर 90% तक की छूट शामिल है। ज़ाती रहाइश की खरीदारी पर 1 मरतबा कैपिटल गेन टैक्स की छूट,
تعمیراتی مواد اور خدمات کے حصول پر ود ہولڈنگ ٹیکس معاف، غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر عائد ایڈوانس ٹیکس 10% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بننے والے گھروں پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 5 مرلے کے مکان پر 5% کے مارک اپ اور 10 مرلے کے مکان پر 7% کے مارک اپ پر قرضے کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ملک میں تعمیراتی شعبے کے فروغ سے جہاں معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی، وہیں روزگار کے لاکھوں مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، حکومتی پالیسیوں سے کار فائنینسنگ اور آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے شیراز علی۔ ملکی تاریخ میں گزشتہ ایک سال میں گاڑیوں کی فروخت میں 62% اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے آٹو کار فائنینسنگ اسکیم اور گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کے بعد آٹو موبائل انڈسٹری تیزی سے گروتھ کر رہی ہے۔ گروتھ کی بنیادی وجہ حکومت کی طرف سے 2021-22 کے وفاقی بجٹ میں گاڑیوں پر لاگو ٹیکس میں کمی واقع کرنا ہے۔ Pakistan is one of the fastest growing auto industries in Asia, especially last year COVID کے بعد۔ تو as per Pakistan's Automobile Manufacturing Association، انہوں نے ریکارڈ 62% کی گروتھ دکھائی ہے ایئر آن ایئر، فسکل ایئر 20 اور 21 میں۔ بینکوں اور انشورنس کمپنیز نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو پروڈکٹس نکالے ہیں، جو چیزیں کی ہیں، اس سے افورڈیبلٹی بریکٹ بڑھ گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے 1000 cc تک گاڑیوں میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں واضح کمی کی تھی، جس کے بعد مختلف کمپنیوں کی طرف سے بنائی جانے والی گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں ایگریکلچر، کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری مثبت معاشی پالیسیوں کے مجموعی اثرات آٹو موبائل انڈسٹری پر پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور کی بینکنگ عدالت نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع کر دی۔ شہباز شریف نے موقف اختیار کیا کہ وہ تفتیش کے لیے FIA کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں۔ FIA حکام نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف تحقیقات کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ عدالت نے تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی ٹیم کے سربراہان کو طلب کر لیا ہے۔ پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ظہیر عباس کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت پسماندہ اور کمزور طبقے کی خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ لاہور میں نادار بچوں کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ حکومتی پالیسیز کا محور پسماندہ طبقوں کی بحالی ہے۔ اس موقع پر بچوں نے ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ فنڈ ریزنگ کے لیے میوزیکل پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور ہب زدہ رہے گا، تاہم زیریں سندھ اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتایا قاسم علی نے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ثقافتی پہناوے یوں تو اپنی مثال آپ ہیں، تاہم بلوچی واسکٹ کی بات ہی نرالی ہے، جو اپنی مخصوص بناوٹ اور نقش و نگار کی وجہ سے انتہائی جاذب نظر اور مقبول ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پھلوں کے بادشاہ آم کے حوالے سے پاکستان کی خصوصی پہچان ہے۔ بیلاروس میں پاکستانی آم سے بنی مختلف مصنوعات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مشرقی یورپ کے ملک بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں پاکستان کے سفارتخانے نے مینگو فیسٹیول کا اہتمام کیا۔ ہمارے نمائندے زاہد مصطفیٰ کے مطابق پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور وزارت تجارت کے اشتراک سے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں یہ میلہ سجایا گیا۔ مینگو فیسٹیول میں بیلاروس کے عوام نے بڑی دلچسپی ظاہر کی اور پاکستانی آموں کو بہت پسند کیا۔ آموں کے اس میلے میں 5000 سے زائد مردوں، خواتین اور بچوں نے شرکت کی اور پاکستانی اسٹال کا دورہ کیا۔ مینگو کیوب، مینگو آئس کریم اور مینگو شیک سمیت کئی
अशिया मेहमानों को पेश की गईं। लोगों ने पाकिस्तानी आम के जायके की तारीफ की। सफारतखाने की जानिब से फल दरामद कंदगान और बड़े स्टोरों के नुमाइंदों को आम के नमूने भी फराहम किए गए ताकि दुनिया भर की तरह बेलारूस में भी पाकिस्तानी आमों की मार्केटिंग की जा सके और पाकिस्तानी आम हर सीजन में बहम पहुंचाए जा सकें। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक के बाद खेल की खबरें शामिल करेंगे समी।